Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 1 चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं और हम किस तरह किसी बहुत बड़े नंबर, बहुत ही लार्ज नंबर या बहुत ही स्मॉल नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अपनी ईज की वजह से हम अपनी ईज के लिए बहुत ही लार्ज नंबर्स या बहुत ही छोटे नंबरों को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। फिर देयर आर सम स्पेसिफिक पावर्स जिनको हमने कुछ खास नेम्स दिए हैं। तो आज के चैप्टर में आज के टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो है प्रीफिक्सेस ऑफ पावर्स ऑफ 10। तो इसका जो स्टेटमेंट है, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10 raised to the power p which are given special names known as prefixes। यानी हमने 10 के मुख्तलिफ पावर्स लिए हैं और इसके जो कुछ खास पावर्स हैं उनको हमने कुछ नेम्स दिए हैं और उन पावर्स को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमें नजर आ रहा है दिस इज प्रीफिक्स, दिस वन इज द सिंबल फॉर यूज फॉर प्रीफिक्स एंड दिस प्रीफिक्स इज इक्विवेलेंट टू। सो द फर्स्ट वन इज एटो, it is represented by small a and it is equivalent to 10 raised to the power minus 18. The second one is femto, it is represented by small f and it is equivalent to 10 raised to the power minus 15. Similarly, pico is represented by small p and it is equivalent to 10 raised to the power minus 12. Nano is represented by small n and it is equivalent to 10 raised to the power minus 9. Similarly, micro is represented by mu and it is equivalent to 10 raised to the power minus 6. Milli is represented by m and it is equivalent to 10 raised to the power minus 3. Centi is represented by c and it is equivalent to 10 raised to the power minus 2. Similarly, deci, deca, kilo, and these are, then we came to the positive powers which are given as names. For example, mega is represented by capital M and it is equivalent to 10 raised to the power 6. Giga is represented by 10 raised to the power 9. Tera is represented by 10 raised to the power 12. Peta is represented by capital P. There is a difference. This one is represented by capital P. इसको हम capital P से represent करते हैं और जो हमारे पास यहाँ pico है इसको हम small p से represent करते हैं। इसी तरह hexa को हम it is symbolically written as E, capital E, and it is equivalent to 10 raised to the power 18. So these names are known as prefixes and these are special powers. 10 raised to the power, some negative powers, some positive powers, and we have given some special names to them and these names are known as prefixes। हमारे पास कुछ खास पावर्स हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स हैं और इन खास पावर्स को हमने जो नेम्स दिए हैं उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स, कि हम एसआई यूनिट्स को किस तरह यूज करेंगे। यानी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं तो हमको किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा, तो इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। Conventions for using SI means System International के जो यूनिट्स हैं, Conventions for using SI units। यानी जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन या जो भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका जब हम यूनिट लिखते हैं तो इस यूनिट को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हम मद्देनजर रखते हुए इसको लिखेंगे। तो इसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 1 इज कि फुल नेम ऑफ द यूनिट does not begin with a capital letter, with a capital letter। For example,
if I say capital NEWTON is considered as the name of a scientist, while small NEWTON is considered as the name of the unit or is the name of the यूनिट विच इज जिस न्यूटन का, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स। तो रूल नंबर, तो फर्स्ट जो स्टेप है, फुल नेम ऑफ द यूनिट does not begin with a capital letter. Newton, for example, if I write like capital NEWTON is considered as the name of a scientist, while small NEWTON is considered as the name of the unit, जो कि force का unit है। Means अगर मैं लिखूं for example कि force is equal to let's say 5 Newton, capital NEWTON, so this is wrong, because if I will write, जब मैं इसका पहला लेटर कैपिटल लिखूंगा तो इसको मैं किसी साइंटिस्ट के नेम के, ये कोई साइंटिस्ट का नेम है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ये उसका नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल लेटर को हम स्टार्ट नहीं करेंगे, किसी भी यूनिट का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फिर अगर मैं किसी यूनिट का फुल नेम लिखना चाहता हूं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, यानी दिस वन इज करेक्ट एंड इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, बट दिस वन इज नॉट करेक्ट because it is starting with a capital letter, क्योंकि ये n capital letter से start हो रहा है। तो first हमें इस चीज का ख्याल करना होगा कि जब भी हम full name of the unit लिखेंगे तो जो हमारा first letter होगा वो small हम इसको लिखेंगे। The second one is symbols of units after scientists' names are written with a capital letter. For example, अगर मैं लिखूं hertz hz, so hertz is the name, also hz ये एक यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है hertz। लेट्स से मैं कहूं hertz is the unit of frequency, but hertz is also the name of the scientist, यानी ये ऐसे नेम से इसका ताल्लुक है जो किसी साइंटिस्ट का नाम भी है। फॉर एग्जांपल हर्ट्ज इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो जब नेम किसी साइंटिस्ट का होगा तो उसका जब हम सिंबल लिखेंगे उस यूनिट का तो वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली जब हम प्रेशर का यूनिट लिखते हैं, प्रेशर का पास्कल, तो हम पीएस को पीए लिखते हैं। ये यूनिट है इज द यूनिट ऑफ pressure. Similarly इस PA, तो ये भी किसी साइंटिस्ट का नाम है पास्कल। तो जब भी यूनिट स्टार्ट होगा और वो किसी साइंटिस्ट के नेम के आफ्टर होगा तो हम उस यूनिट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह हर्ट एक साइंटिस्ट का नाम है तो हमने कैपिटल H लिखा है और Z लिखा है उसके साथ। सिमिलरली पास्कल, तो पास्कल किसी साइंटिस्ट का नेम है और हमने PA को कैपिटल लिखा है। सिमिलरली इस तरह बहुत से एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, तो हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे।
सिमिलरली न्यूटन, अगर मैं लिखूं फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो हम अगर मैं सिंबॉलिकली इसको लिखना चाहता हूं 5 न्यूटन, तो मैं इस n को कैपिटल लिखूंगा क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नेम के आफ्टर है, न्यूटन। सो दैट्स व्हाई जब मैं यूनिट को लिखूंगा, सिंबॉलिकली लिखूंगा, तो फिर मैं जब साइंटिस्ट का नेम होगा और वो उस यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखूंगा। सो दिस इज द सेकंड रूल जिसको हम फॉलो करेंगे। The third one is small letters are used as symbols for units not derived from a specific name। यानी ऐसे भी कुछ यूनिट्स हैं हमारे पास जो किसी खास नेम को रिप्रेजेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम हर्ट्ज कह रहे हैं, तो हर्ट्ज किसी साइंटिस्ट का नेम है, तो हम उस एच को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सिमिलरली पास्कल जो कि प्रेशर का यूनिट है, तो हमने कहा कि पास्कल इज आल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो हम पी को कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली न्यूटन, तो हमने 5 n को हमने कैपिटल लिखा। लेकिन इस तरह भी कुछ यूनिट्स है हमारे पास जो किसी खास नेम को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो उनको स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं मास को रिप्रेजेंट करता हूं किलोग्राम्स में, तो हम के को स्मॉल लिखेंगे, या तो हम इसको केजी लिखेंगे या उसको किलोग्राम लिखेंगे, KILOGRAM। सिमिलरली अगर मैं लेंथ को मेजर करना चाहता हूं, तो उसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, तो मैं उसको कैपिटल M से नहीं लिखूंगा, मैं उसको स्मॉल m से लिखूंगा, क्योंकि ये किसी खास नेम, स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जिस तरह ये हर्ट्ज किसी स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई इट्स कैपिटल, इट्स फर्स्ट लेटर इज रिटन एज कैपिटल। सिमिलरली इन द सेम वे, पास्कल PA is representing the name of the scientist, that's why P is written as capital, but here मास जो है वो किसी खास स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसलिए हम उसको स्मॉल k से रिप्रेजेंट करेंगे, kg। सिमिलरली लेंथ, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड देयर आर सर्टेन अदर यूनिट्स जिसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये है थर्ड नंबर रूल, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखेंगे तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज द प्रीफिक्स। जो भी हमने पढ़े, द प्रीफिक्स जो भी हो, फॉर एग्जांपल माइक्रो हो, मिली हो, केजी हो, जो भी हो, इज रिटन जस्ट बिफोर the unit adjacent to it। इसका क्या मतलब है? यानी अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखूं और उसमें प्रीफिक्स आ जाए, तो मैं प्रीफिक्स को यूनिट से पहले लिखूंगा, ना कि यूनिट के बाद लिखूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं डेट, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि मास इज इक्वल टू, लेट्स से इट इज 5 मिलीग्राम, लेट्स से इट इज 5 मिलीग्राम, तो ये करेक्ट रहे क्योंकि मिली इज प्रीफिक्स। यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 5 × 10 raised to the power -3 ग्राम्स। तो ये प्रीफिक्स यूनिट से पहले आ रहा है और बिल्कुल इसी के साथ हम इसको लिखेंगे, तो ये करेक्ट रहे। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, यूनिट पहले हो और प्रीफिक्स बाद में आ जाए, सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। तो इसका हम ख्याल रखेंगे कि जब भी हम प्रीफिक्स लेंगे, माइक्रो प्रीफिक्स आ जाए, माइक्रोफेराड्स, जिस तरह हम मुख्तलिफ जगहों पे हम यूज करते हैं उसको, तो हम प्रीफिक्स को उस यूनिट से पहले लिखेंगे, ना कि उसके बाद लिखेंगे। तो ये है रूल नंबर 4। नाउ द फिफ्थ वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स
is written each with one space apart. इसका क्या मतलब है? बाज़ औक़ात हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी में दो यूनिट्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं टॉर्क, फॉर एग्जांपल मैं टॉर्क का यूनिट लूं टॉर्क. लेट्स से मैं कहूं कि टॉर्क इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर. तो ये इसमें दो यूनिट्स आ रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स हैं. तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर. द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स इज रिटन ईच विद वन स्पेस अपार्ट. अब यहां हम देख सकते हैं कि इसको मैंने इन कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स के दरमियान में स्पेस नहीं है. तो जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को लिखेंगे तो उनके दरमियान में एक स्पेस लाजमी होना चाहिए. तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है. इसको मैं बहरहाल इस तरह लिख सकता हूं कि 50 न्यूटन स्पेस मीटर. दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें दो यूनिट्स आ जाएं या दो से ज्यादा आ जाएं, तो उसमें हर यूनिट के बाद स्पेस होना चाहिए. तो इसमें स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन एंड दिस वन इज द करेक्ट वन. तो इसका भी हम ख्याल रखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को ईच विल बी रिटन विद वन स्पेस अपार्ट. तो सो दिस इज द रूल नंबर 5. नाउ द सिक्स्थ वन इज, these are very important. The sixth one is double, triple, and so on, prefixes are not allowed. For example, अगर मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल मास ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मास इज इक्वल टू 5 मिलीग्राम. अब मैं दो प्रीफिक्सेस को यूज कर रहा हूं या तीन को यूज कर रहा हूं. दो प्रीफिक्सेस यहां यूज हो रहे हैं. सो दिस इज रॉन्ग. वी कैन नॉट यूज टू प्रीफिक्सेस एट द सेम टाइम बिफोर द यूनिट. यानी हम दो प्रीफिक्सेस को यूनिट से पहले एट द सेम टाइम यूज नहीं कर सकते. इसी तरह कैपेसिटेंस को हम मेजर करते हैं माइक्रोफेराड्स में. और अगर मैं लिखूं द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 5 लेट्स से माइक्रोफेराड, सो दिस वन इज करेक्ट. तो एक ही प्रीफिक्स यूज होगा यूनिट से पहले. लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफेराड, सो दो यूनिट्स या तीन यूनिट्स आर नॉट अलाउड टू राइट देम बिफोर द यूनिट. तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत होगा. एक ही प्रीफिक्स होगा और उसको हम यूनिट से पहले लिखेंगे. So this is the 6th number rule. We should be keeping this in our view while writing the units of the physical quantities. Now rule number 7 is when a multiple of unit is raised to a power, the power is applied to the whole multiple and not just to the base unit. यानी बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर स्क्वायर. अब इसमें ये एक मल्टीपल है किलो और ये एक बेस यूनिट है. तो जब भी व्हेन अ मल्टीपल ऑफ द यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, then this power is applied to the whole multiple with
दैट मल्टीपल, यानी जब भी किसी बेस यूनिट पे पावर आ जाए तो ये पावर सिर्फ इस यूनिट पे अप्लाई नहीं होगा, इसको हम कंसिडर इस तरह करेंगे कि ये इस पूरे विद मल्टीपल के साथ इस पूरे पे अप्लाई हो रहा है। यानी मैं इसको इस तरह लिखूंगा 1, इसको मैं इस तरह कंसिडर कर सकता हूं किलोमीटर स्क्वायर, एंड देन किलो रिप्रेजेंट्स 1 into 10 raised to the power 3m होल स्क्वायर, और फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 1 into 10 raised to the power 6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह यूनिट अप्लाई होगा, यानी जब भी किसी बेस यूनिट पे पावर आ जाए तो इस पावर को मैं सिर्फ बेस यूनिट पे कंसिडर नहीं करूंगा, इसको मैं पूरे मल्टीपल के साथ उसके साथ कंसिडर करूंगा। देन दिस मल्टीपल इज इक्वल टू 10 raised to the power 3। देन देयर इज अ रूल दैट इफ पावर ऑफ अ पावर देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड, दैट 3 2s are 6 and n square। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। सो दिस इज द रूल नंबर 7। नाउ द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन लंबे लंबे स्टेटमेंट्स का लिखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप इन रूल्स को। रूल नंबर 8 इज बिफोर पुटिंग values in the formula, make sure that all the physical quantities are in their SI units। यानी लेट से मुझे किसी न्यूमेरिकल को कोई न्यूमेरिकल हमें दिया है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और उसमें मुझे दिया गया है कि मास ऑफ समथिंग इज लेट से इज 50 ग्राम्स, और दिया गया है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेट से, और मुझे कहा गया है कि फोर्स को कैलकुलेट करो। तो फोर्स को कैलकुलेट करने से पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है तो उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट्स में ना हो तो उसको हम एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी ग्राम एक एसआई यूनिट नहीं है, किलोग्राम एक एसआई यूनिट है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, फिर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 1 kg इज इक्वल टू 10 raised to the power 3 grams। तो मैं इसको 1 ग्राम इज देन दिस एम्प्लॉयज दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 3 kg। तो मैं 50 ग्राम्स को इस तरह लिख सकता हूं 10 raised to the power minus 3 kg which is equal to 50 ग्राम्स। तो इस तरह हम कन्वर्जन करेंगे SI यूनिट में, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर F is equal to MA इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। तो हम एक्यूरेट रिजल्ट इसी तरह कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर एसआई यूनिट में गिवन ना हो, यानी हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन हो, तो हम मीटर को एसआई यूनिट लिखते हैं। तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज जो भी गिवन हो उनको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल सब्स्टिट्यूट देम in that formula, then we will calculate the accurate result. So these are the rules while writing the units of the physical quantities। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें रूल्स का पता ना हो और हम बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट या बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम यूनिट को लिखेंगे और वो गलत रिप्रेजेंट करेंगे, सो ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। तो इन रूल्स को कम से कम हम अपने जहन में इसको याद रख सकते हैं कि किस तरह हम फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। थैंक यू सो मच।